ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, नहीं ਤਾਂ 2027 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ नहीं ਬਣਦੀ। की जो सलाह है उसके लिए धन्यवाद। हाईकमान ने फैसला कर लिया उसके विरोध कोई जाएगा तो उसको फिर पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? नहीं, जो बदमाशी करेगा सब निकाल देंगे। मैडम सिद्धू को निकाला पार्टी से, जब उतने बड़े पर्सनालिटी को निकाल दिए तो बचत लोगों की चिंता नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। मैं कल उससे मुलाकात कर रहा हूँ, बात हुई, टेलीफोन से बात हुई, रंधावा साहब से बात हुई, राणा साहब से बात हुई। किसी ने कहा मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, किसी ने कहा मैं शहर से बाहर। कल हमारी बैठक है। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਪਹਿਲਾਂ नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाईकमान के फैसले के विरुद्ध में कोई है? एक आदमी बता दो जो हाईकमान के फैसले के खिलाफ में हो। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। हाईकमान के फैसले के खिलाफ कोई जाएगा चाहे कोई भी तुर्राम कहाँ हो, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ वो ਕੱਢਿਆ, बाहर चला जाएगा। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਏ 3 ਦਿਨ। हाँ, 3 दिन हो गया, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ। निकल के हुए ऑर्डर बोल रहा हूँ भाई। ਜਿਹੜੀ 92 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? जो वादा करके आम आदमी आए थे वो पूरा हुआ नहीं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੀ ਨਿਬੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ। ਬਘੇਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जी सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। क्यों? देखिए, जारी हुई और सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, क्योंकि जिस समय आप बात करें उस समय मैं तो था नहीं। जब आया और 4 दिन लगातार पीसीसी में बैठा और वहाँ कार्यकर्ताओं से लेके बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, अनेक कमेटियों की बैठक हुई और सारे कमेटियों में और इंडिविजुअल जो मीटिंग हुई और उसके बाद लगातार किसी घर में नाश्ता खाने जा रहा हूँ, किसी के यहाँ दोपहर का भोजन, किसी के यहाँ रात में डिनर, तो वहाँ सब सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है रोज़। लेकिन सब ने हाईकमान के निर्णय को कहा कि बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है। ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾਸ਼ਤਾ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੜਾ। हाँ, तो मैं कल उससे मुलाकात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरी बात हुई, टेलीफोन से बात हुई, रंधावा साहब से बात हुई, राणा साहब से बात हुई, है ना। तो ये या तो शहर से बाहर थे या कार्यक्रम में व्यस्त थे। बाहर तो नहीं थे जी, वो सी चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लगातार। मुझे जो कहा गया वो मैं बता रहा हूँ भाई। किसी ने कहा मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, किसी ने कहा मैं शहर से बाहर हूँ। तो मैं 3 दिन बाद मुलाकात करूँगा और कल हमारी बैठक है। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, वो जो कमेटी बनी थी वो प्रधान को या एलओपी को बदलने और बनाने के लिए नहीं था। वो तो पूरा राजनीतिक जो परिस्थिति है उसके अध्ययन के लिए बना था और यहाँ के सारे नेताओं से मिलकर बात की गई और उन्होंने हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी। हाईकमान ने फैसला सुना दिया।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ और ਤੁਹਾਨੂੰ केवल सुनिए, केवल एलओपी और पीसीसी चीफ नहीं हुए, बल्कि और 4 कमेटियों की घोषणा हुई ना। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं लग रहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग 2027 की अगवाई कर सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले की परिस्थिति अलग थी, अभी स्थिति ये है कि अभी सब लोग मिल के एक साथ चलेंगे तब चुनाव जीता जाएगा, और जो चेहरा हमारा होगा वो राहुल गांधी जी का होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे, पूरे प्रदेश के जो नेता वो एक साथ रहेंगे, तब हम जीतेंगे। कोई एक नेता के चेहरे में हम चुनाव नहीं जीत सकते। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल नहीं करेंगे, सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। देखिए, हर समय की चुनाव की परिस्थिति अलग अलग होती है। उस समय ऐसा किया था तो इस समय भी ऐसा करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना। देखिए, उस समय चन्नी साहब को घोषणा कर दिया, मैं मुख्यमंत्री था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री, लेकिन हम लोग चेहरा घोषित नहीं किए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं। इस समय निर्णय यही लिया गया, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2027 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ऐसे लोगों को देखिए, उनकी जो सलाह है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला किया है कि हम सब सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे, और उसके बाद भी यदि असहमत है तो उसको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। सलाह दिया, धन्यवाद, लेकिन उसके बाद भी जब हाईकमान ने फैसला कर लिया उसके विरोध कोई जाएगा तो उसको फिर पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? नहीं, जो बदमाशी करेगा सब निकाल देंगे, चाहे छोटा हो। हमने मैडम सिद्धू को निकाला पार्टी से, जब उतने बड़े पर्सनालिटी को निकाल दिए तो बचत लोगों की चिंता नहीं है। जो अनुशासनहीनता करेगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਡੇ, देखो ऐसा प्रगट है, सिंह, सुनो भाई, प्रगट सिंह, रंधावा साहब, चन्नी साहब हमारे बड़े चेहरे हैं, बड़े पदाधिकारी, ये गलती क्यों करेंगे भाई? पर उन्होंने तो कहता कि नहीं मानते राजा वड़िंग ਨੂੰ प्रधान। कौन? कोई नहीं बोला है। हाईकमान के फैसले के विरुद्ध में कोई है? एक आदमी बता दो जो हाईकमान के फैसले के खिलाफ में हो, और उसके खिलाफ में फिर उसको रहना नहीं क्यों चाहिए? ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, भाई ਕਹਿੰਦੇ देखो, ਜੀ ऐसा ਚਰਨਜੀਤ है। ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। सुनो भाई, मैंने कमेटियों की बैठक की, पीसीसी ऑफिस बिहार की बैठक की सब आए। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ कौन आया? अरे सुनो भाई, जिला प्रधान की बैठक की सब आए, कौन नहीं आया? सब आए। तो जितने कमेटियों की बैठक की सब आए। अब जो कमेटी में नहीं है वो लोग थोड़ी आएंगे भाई। चरनजीत सिंह चन्नी चन्नी साहब के साथ कल जा रहा हूँ, कल मिलने जा रहा हूँ। मैं तो उससे बोला हूँ कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। गुरजीत राणा ना होगी? हाँ, मैं उसको भी बोला हूँ कि वो भी आएंगे। सुखिंदर रंधावा ना मीटिंग होगी? सुखी रंधावा से मेरी लगातार बात हो रही है। नहीं, यहाँ हुण मीटिंग होगी, कल होगी ना? होगी। हाँ जी, अजे तक नहीं हुई। नहीं हुई, वो बाहर थे। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ कि राजा वड़िंग ਨੂੰ बदल दो? क्या जी, हिंदी में बताओ थोड़ा। क्या पहले कह के आए थे इनमें से कोई भी 2-3 लोग के राजा वड़िंग को हटा दीजिए अध्यक्षता से? नहीं, मुझे कमेटी में मैं तो नहीं था। कमेटी के सामने क्या बोले ये लोग जानेंगे और कमेटी जानेगी, मैं थोड़ी जानूंगा। की स्नेहा की लेके आए हो दिल्ली तो के? जी, दिल्ली तो स्नेहा की लेके आए हो, मैसेज क्या लेके आए हो कि इन्हों कितना कंट्रोल करना है? देखिए, सबसे पहली बात है, कमेटी गठन करने पहले तो कमेटी गठन नहीं हो रही थी, उसका इंतज़ार कर रहे थे। कमेटी जैसे डिक्लेयर हुआ तत्काल मैं पंजाब आ गया। अब तो मैं यहाँ फ्लैट भी ले लिया, मैं लगातार रहूँगा भी, एक हफ्ते यहाँ, एक हफ्ते छत्तीसगढ़, तो लगातार मेरा आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, जे चरणजीत सिंह चन्नी या उन्हों का धड़ा कल मीटिंग के सहमति नहीं जताता तो फिर जो तुसीं कार्रवाई की गल की, कि चरणजीत सिंह चन्नी समेत बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? क्या चीज़?
अगर वो आपके इस फैसले से सहमत नहीं होते किससे? कल मसला नहीं निपटता। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, किसी एजेंडा में ऐसा थोड़ी बात होगी। हम तो चुनाव की तैयारी संदर्भ में बात करेंगे। असहमति वाली बात ही कहाँ, किसी नेता ने कहा हाईकमान के निर्णय से असहमति, तो आप जबरदस्ती मेरे मुंह डलवा रहे कोई बात। कोई विचित्र रास्ता वैसे निकल सकता है कि इसमें बीच वाली बात क्या है? हाईकमान के फैसले के साथ सब है, कोई विरोध में नहीं। हाईकमान के फैसले के विरोध में कौन है बताओ? पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा साफ तौर पर राजा वड़िंग के खिलाफ बोले, राजा के खिलाफ बोले, हाईकमान के फैसले के खिलाफ कुछ बोले क्या? हाईकमान के फैसले के खिलाफ कोई जाएगा, चाहे कोई भी तुर्राम खां हो, वो पार्टी में नहीं रहेगा। मदन लाल जलालपुर नोटिस वो बाहर चला जाएगा। वो 3 दिन का टाइम देता सी, लंघ के 3 दिन। हाँ, 3 दिन हो गया, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। आज चौथा दिन है, हो गया ऑर्डर, निकल गया होगा, पता कर लो। सस्पेंड हो गए मदन लाल जलालपुर, निकल गया हो ऑर्डर, बोल रहा हूँ भाई। अच्छा एक चीਜ਼ ਦੱਸੋ, 2027 ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ 92 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦमी पार्टी ਨਾਲ? पहली बात, बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, और उसकी तैयारी हमारी बहुत पहले से चल रही है। ये संगठन सृजन वर्ष है, राहुल गांधी ने घोषित किया है, और तमाम देश भर में अलग अलग प्रांतों में इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सारे सीनियर लीडर जिलों में जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष सब बने, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। हम लोग पहली बार पंजाब में बूथ लेवल तक के गए हैं। हमारे BLA 2 हमारे बन गए हैं सभी पोलिंग बूथ में, जबकि ना आम आदमी पार्टी का बना है ना ही दूसरे पार्टी का बना है। ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ, ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖिए, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ है। पहली बात तो ये है, किसी भी सरकार, कोई भी लोकप्रिय सरकार है, वो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था बना कर रखे। इस सरकार, अब थाना बचा तो सुरक्षा नहीं है, थाना सुरक्षित नहीं है, आम जनता को बीच बाजार में गोली मारी जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, यहाँ फिरौती मांगी जा रही है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार दावा कर दी है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ युद्ध नशा विरुद्ध चलाया, गैंगस्टरों का खात्मा कर रहे हैं। कौन सा गैंगस्टर पकड़ा? बताओ, गैंगस्टर कहाँ पकड़ा है, क्या कार्रवाई की है? एक आध बता दो। काफ़ी इनकाउंटरों का दावा किया जाता है। कोई एक दावा करने से होता क्या? कम हुआ क्या? कमी कितने लगती है? तो देखिए, तो ये चाहे ड्रग का मामला हो, गैंगस्टर का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला, पूरे मामले में फेल। और जो वादा करके आम आदमी आए थे वो पूरा हुआ नहीं। 51 महीने से पैसा नहीं दिए, तो गरीब लोगों को 51,000 रुपया 51 महीने का पैसा खा गए। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, पैसे आ गया। आखिर 9 महीना का पैसा दोगे और उसके लिए बजट कितना रखे हो? दूसरे फंड के आप दे रहे हो, कितने दिन दे पाओगे? चुनाव सर पे है तो उठ के तब तक के तो मस्त थे। अच्छा, बीजेपी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ बीजेपी ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ है। देखिए, ऐसा है, उनके बीजेपी के काम करने की शैली क्या है? चुनाव जिस राज्य में हो वहाँ के नेताओं को डराओ धमकाओ, अपनी पार्टी में लाओ। जो अधिकारी है उसके ED के रेट डालो, CBI के रेट डालो और अपने पार्टी में ले आओ। अधिकारियों को भी डराओ और निर्वाचन आयोग को पूरा दुरुपयोग करो, ये उसकी कार्यशैली है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? कांग्रेस पूरे संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता हमारे साथ है। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਝ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ? ये राजा का कोई डिक्लेयर नहीं है, ये तो उदयपुर डिक्लेरेशन है। और रायपुर में इसको जो हमारे महाधिवेशन हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये तो पार्टी लाइन है,
जिसमें यूथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है, ST SC OBC माइनॉरिटी विमेंस इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਬੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 2027 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ।